Assalamu alaikum all of you. My name is Muhammad Shafiq Bhatt. Today my topic is education. Those students who want to appear in the test of IELTS, PTE, ESOL, TOEFL, CERT language and any others English courses and exam, this is a very important topic for those students who want to learn English and those students who want to give interview for any job. If you know all these points which I have given on the screen, you can get good bands and good marks in your exam and you can give the good interview for the any job. I'll guarantee to you if you know all these points which I have given. So listen to me very carefully about these points. I did master in business and management and I want to do PhD in future in this subject. Along with I got different diplomas in computer from private institutions. When I was 12 years old, my favorite subject was English and I used to write different kind of stories and I used to read different kind of novels and I used to listen English news like BBC, CNN, and I used to speak English with my friends, with my family members, and purpose of these things I wanted to improve my English. And I want to tell about my favorite teacher of English, that was respected Sir Ijaz. He was very kind, he was very simple, he was very humble, and the way of the teaching was outstanding, awesome, superb and very simple. So that's why I liked very much and that was my favorite teacher. Education system in Pakistan I don't like because there are two educational systems. One of them is Urdu system, second of them is English systems. If you have two systems in your country, so you can't develop. So I would say it should be just one system so you can improve in every field if you have one kind of system in education, whether it is Urdu medium or it is English medium. But I will refer to Urdu medium because this is our native language. So here I want to share my quotation which I have written myself in English. This is about education. That is, school make us learned and culture, without this we are nothing. This is my own quotation in English which I have written. At last I would like to request all of you, please subscribe my channel, like it and share it and press the icon bell so that you can get my all video lecture which I have launched already on YouTube channel WSH Sharing, and those lecture which I have to launch yet. Thank you very much. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shafiq Bhatt. Today we are going to start very important questions for IELTS, PTE, CERT language, ESOL and those students who want to learn English. So these questions are very important and very essential. Why? If you want to conduct the interview, so these questions will help you. If you want to give the interview, whether that is a multinational company, whether you want to get the job in foreign country or whether you want to get study in foreign country, so these questions will help you. Let's start. The first question is, what is your full name? My full name is Muhammad Shafiq Bhatt. What is your family name? You can call also its surname, last name. My family name is Bhatt. What is your first name? My first name is Muhammad. What is spelling of your name? My first name is Muhammad. So Muhammad spelling is Muhammad. How may I call you? Muhammad Shafiq Bhatt. Do you have special meaning of your name? Definitely I have a special meaning of my name. My name meaning is kind. Question number 7 is, who is your best teacher? My best teacher, respected Sir Ijaz. His way of teaching is outstanding and it is superb. Not only the student like him very much, but all the teacher give him respect. I would like to say he is not only the hardworking teacher, but he has a good nature. That's why with teaching, he educates the students about ethics and etiquettes. The question number 8, who was your favorite teacher? My favorite teacher was Sir Ali. When I was in matric, he was a new teacher in the government school
and he was a young teacher. The way of teaching in mathematics, that was excellent, and his style in teaching in mathematics, that was very easy. So that's why all the students like. And I would like to say, along with teaching, he was a good reformer, and he trained the students for a good behavior. And I would like to say, we should respect our old teacher. Question number 9. What does your father do? Basically, my father is a shopkeeper. He has grocery shop, and he has been running this shop since 1980. Question number 10. What do you do in the evening time? Well, I would like to do 5 things in evening time. First, I have to eat dinner with my family member. Then watching talk show and news. After that, spending time in chatting and sometime playing game with my family member. Furthermore, I would like to read different kind of books. At last, before sleeping, I have to offer prayer. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वोकेबलरी। यहाँ मैंने 1 से लेकर 10 तक वोकेबलरी दी है। ये उन स्टूडेंट के लिए जो पीटीई या आइट्स या सर्ड लैंग्वेज के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे जैसे आइट्स के अंदर 4 मॉड्यूल हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, उसके लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ जैसे स्पीकिंग के लिए तो वोकेबलरी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एट द सेम टाइम जो रीडिंग है वो कदरे थोड़ी सी टफ है, तो उसके लिए चाहे वो पीटीई की है चाहे वो आइट्स की है, तो उस दोनों के लिए आपको वोकेबलरी का आना बहुत ज़रूरी है। जब अगर वोकेबलरी आ जाएगी तो रीडिंग में बड़ी आसानी आपको होगी। चलिए हम वोकेबलरी की तरफ चलते हैं। पहला जो इसका वर्ड है ऑब्वियस, इसका मीनिंग है क्लियर एंड अंडरस्टूड। यहाँ मैंने सिनोनिम्स 2 दिए हैं, इसके 2 मीनिंग दिए हैं और ये एडजेक्टिव है। और फिर आगे एक फ्रेज भी दिया है ताकि बात अंडरस्टैंड करें। कम से कम 1 या 2 मीनिंग आप इसके याद कर सकते हैं। जितने ज़्यादा याद करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। नंबर 2 जो है, इसका मतलब जैसे पहला है ऑब्वियस, इसका मतलब क्लियर एंड अंडरस्टूड है। इसका मतलब है वाज़े और ठीक के माना में इसका उर्दू में कह सकते हैं। और नंबर 2 जो है वो है अकोमोडेशन, ये नाउन है। इसका मतलब रिहाइश है, यानी समवेयर टू लिव और स्टे। और ये भी कह सकते हैं आप प्लेस टू लिव और स्टे, यानी रिहाइश के माने में आता है। जैसे हम कहते हैं कि वेयर इज़ योर अकोमोडेशन, आपकी रिहाइश कहाँ है, तो इस माने में। नंबर 3 है टेरिबल। टेरिबल एडजेक्टिव है और इसका मतलब खौफनाक है। जैसे हॉरिफाइंग और हॉरिबल के माना, ये तीनों के एक जैसे मीनिंग है। खौफनाक जैसे कोई मूवी ड्रामा हो सकता है। इसी नंबर 4 है ऑब्सक्योर, ये एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। इसका मतलब होता है गैर वाज़े, यानी अनक्लियर, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेग, एम्बिगुअस, अनसर्टन। ये बहुत सारे मीनिंग यहाँ मैंने दिए हैं। जितने कम से कम एक आपको आना चाहिए, इसके अलावा आप मैक्सिमम भी याद कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा वोकेबलरी आपके पास, सिनोनिम्स होंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके पास होंगे, उतना ही आसानी से आप राइटिंग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। और इसी तरह आप स्पीकिंग में, रीडिंग में ग्रिप पा सकते हैं अगर आपके पास वोकेबलरी है। उसके बाद है जैसे ऑब्सक्योर का मतलब मैंने बता दिया, गैर वाज़े। इसका मतलब होता है, ये एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं, एट द सेम टाइम वो वर्ब भी होते हैं, एट द सेम टाइम वो नाउन भी होते हैं। अगर इनका आपको पता चल जाए तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। आप स्पीकिंग करने में या आप राइटिंग के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से उस वर्ड को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको प्लेस कर सकते हैं किसी भी जगह पे। ये सबसे बड़ा जो अहम फैक्टर है। इसके लिए आप लोग, मेरा एक ग्रामर का लेक्चर है, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, एडवर्ब, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप वो भी लेक्चर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक साथ दे दूँगा।
इसके साथ है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ए को आई की तकरीबन बाहर निकालेंगे, एम्बिगुअस, और इसका मतलब है गैर वाज़े, अनक्लियर, अनसर्टन। इसको सर्टेन नहीं पढ़ेंगे, सर्टन पढ़ेंगे। नंबर 6 जो है वर्ड हमारा अनएम्बिगुअस है, ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब है वाज़े, अनमिस्टेकेबल, क्लियर कट। और नंबर 7 है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो नाउन है और इसका मतलब है पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रपोजल, यानी मंशूर, जिसको उर्दू में हम कहते हैं। मंशूर को आप पॉलिसी भी कह सकते हैं, भी आपकी पॉलिसी क्या है, आपका प्रोग्राम क्या है, आपकी प्रपोजल क्या है। मैनिफेस्टो, अगर आप एक कोई वर्ड भूल जाते हैं तो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड या ये सिनोनिम या मीनिंग आते हैं तो आप कोई भी वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। नंबर 8 है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट एडजेक्टिव भी है, वो भी है। इसका मतलब भी है कोई बात आसानी से समझ आ जाए, यानी परसीव बाय द सेंस। और फिर नंबर 9 है रेंडर। रेंडर जो है ये वर्ब है, इसके 2 मीनिंग यहाँ मैंने दिए हैं, प्रोवाइड और गिव, यानी कोई सर्विस देना या किसी की मदद करना, उस माना में इस्तेमाल होता है। और एक मीनिंग है कोज टू बी या बिकम, यानी सबब बनना। तो बड़े अहम है। और लास्ट है रिलक्टेंट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हिचकिचाहट। और यहाँ आप मैंने 4-5 मीनिंग दी हैं, उनमें से कोई 1-2 आप कर सकते हैं। अनविलिंग है, अनएंथ्यूजियास्टिक है, हेजिटेंट है, शाय है। शाय का मतलब भी शर्मिला, यानी जो हिचकिचाहट करता है या करती है। हेजिटेंट का मतलब यही है, जैसे मैंने जुमला किया है, शी इज़ रिलक्टेंट टू गेट इन्वॉल्व, वो शामिल होने के लिए हिचकिचाहट महसूस करती है। तो इस माना में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लास्ट में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जो मेरा चैनल है WSH शेयरिंग, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन बेल प्रेस करें, ताकि जितनी मेरी वीडियो मेरी 185 के करीब मेरी वीडियो आ चुकी है, जिसमें स्पोकन इंग्लिश भी है, जिसमें आइट्स के बहुत सारे लेक्चर हैं, राइटिंग के लेक्चर मेरे आ चुके हैं, स्पोकन के बहुत सारे मेरे लेक्चर आ चुके हैं। 100 क्वेश्चन जो हैं स्पोकन इंग्लिश के वो मैं दे चुका हूँ। ग्रामर के बहुत ज़्यादा मेरे लेक्चर जो हैं वो आ चुके हैं। इस तरह आपको फेसबुक पर भी ये मेरी वीडियो मिल सकती हैं, जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर PTE एंड आइट्स के नाम से। आप वहाँ भी इसको हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब की बात करने जा रहे हैं, वो है शुड। शुड जो है बड़ा कॉमन है, आप लोगों ने पहले इसको पढ़ा भी है। शुड जो है बेसिकली ये रिकमेंडेशन के लिए आता है, एडवाइस करने के लिए आता है, और एक्सपेक्टेशन के लिए आता है, और रिक्वेस्ट के माना में भी आता है। तो ये जो मॉडल वर्ब है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूज होने वाला है। और वेदर कि आप इसको रीडिंग में यूज करते हैं, लिसनिंग में आप सुनते हैं, लिसनिंग सुनते हैं, या राइटिंग में, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। चलिए इसको देखते हैं। और शुड जो है ये भी चाहिए के माना में आता है, चाहिए के माना में आता है। और वर्ब की जो इसके साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की बेस फॉर्म जो है हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने बता दिया कि ये किस किस अंदाज के साथ मीनिंग में इस्तेमाल होता है। अब इसके सेंटेंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं। शुड जैसे मैंने कहा कि चाहिए के माना में है, वी शुड ईट टुगेदर, हमें मिलकर खाना चाहिए। यानी ये आप ये कह सकते हैं कि ये रिकमेंडेशन भी है, रिकमेंड किया जा रहा है, या ये रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ये रिक्वेस्ट के माना में है। शी शुड गो टू द डॉक्टर, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये भी रिकमेंड किया जा रहा है, उससे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, या उसे एडवाइस किया जा रहा है कि उसे जाना चाहिए। वहाज शुड स्टडी हार्ड, वहाज को सख्त मेहनत करनी चाहिए, ये भी एडवाइस किया जा रहा है। दे शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, उन्हें हर एक की इज्जत करना चाहिए।
तो ये भी एडवाइस है, रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, रिक्वेस्ट की जा रही है और एडवाइस की जा रही है कि उन्हें हर एक की जो इज्जत है वो करनी चाहिए। यू शुड लव ह्यूमैनिटी, आपको इंसानियत से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ एक मैसेज भी है अच्छा कि और ये ऐसा ही होना चाहिए कि हमें रंगो नस्ल से बालातर होकर और किसी छोटा बड़ा किसी को समझना नहीं चाहिए। हमें किसी को गरीब अमीर समझकर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें एज अ ह्यूमन बीइंग हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और ह्यूमैनिटी से मोहब्बत करनी चाहिए। तो इसलिए ये शुड का माना यहाँ पे है, यू शुड लव ह्यूमैनिटी, तुम्हें ह्यूमैनिटी से मोहब्बत करनी चाहिए, इंसानियत से मोहब्बत करनी चाहिए। अब अगर एक चीज़ यहाँ नोट की जाए तो देखें, शुड के बाद हमने ईट लगाया है, फर्स्ट फॉर्म लगाई है, बेस फॉर्म है, शुड के बाद फिर गो लगाया है, ये भी बेस फॉर्म है, शुड के बाद स्टडी लगाया है, ये भी बेस फॉर्म है, शुड के बाद रिस्पेक्ट लगाया है, ये भी बेस फॉर्म है, शुड के बाद लव लगाया है, ये भी बेस फॉर्म है। तो इस तरह आप शुड के साथ बेस फॉर्म यूज करेंगे तो आप बड़ी आसानी से बहुत सारे जुमले इस मॉडल वर्ब के साथ बना सकते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह मेरे पहले बहुत सारे लेक्चर मॉडल वर्ब पे आ चुके हैं, मे पे, कैन पे, माइट पे, ought to पे, बहुत सारे, फिर उसके जैसे कैन के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर मे के साथ बी और उसके थर्ड फॉर्म, इस तरह माइट के साथ बी और थर्ड फॉर्म, इस तरह बहुत सारे, फिर मे, माइट और कैन में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर भी मेरा लेक्चर आ चुका है। आप बहुत सारे मॉडल वर्ब के जो मेरे लेक्चर हैं वो भी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। जो मेरा चैनल है WSH शेयरिंग, इस पे जाकर आप देख सकते हैं, तमाम स्ट्रक्चर आ चुके हैं, तमाम सेंटेंसेस इस पे आ चुके हैं, कंडीशनल जितने भी हैं वो भी आ चुकी हैं, और डिफरेंसेस बहुत सारे चीज़ों में हैं वो भी इंग्लिश ग्रामर में वो भी आ चुकी हैं। तो आप सारे लेक्चर वहाँ पे जाकर देख सकते हैं ताकि बेहतर से बेहतर अपनी इंग्लिश ग्रामर को किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके। और लास्ट में तमाम व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल पे प्रेस करें जहां ऑल लिखा होता है, ताकि सारी वीडियो आपको मिले। और इसी तरह फेसबुक पर जो मेरा पेज है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश एंड आइट्स के नाम से, उसको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो आपको वहां भी मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।